Hello, I welcome you all on another video of last month revision series of class 10th maths. In the previous two videos, we have covered cone plus hemisphere and cylinder plus hemisphere. But in today's video, we are going to cover cylinder plus cone. First of all, we'll discuss the formula of cylinder and cone. In the previous two videos, I have already covered the formulas of cylinder and cone, but we will revise it again. The main two formulas which we have to remember is CSA and volume of the given figure. Okay, so the CSA of cylinder is 2 pi r h and volume of cylinder is pi r square h. And the another video which we have to study is cone. Same for the cone also we have to remember the both two formulas CSA and volume. CSA and volume. So the CSA of cone is pi RL. CSA of cone is pi RL. And volume of cone is, I have already taught you that volume of cone is 1/3 pi r square h. So once again, we will revise. Cylinder, CSA of cylinder is 2 pi r h. So and volume of cylinder is pi r square h. Cone, for the cone, CSA of cone is pi r l, where l is the slant height, and volume is 1/3 pi r square h, where h is the height of cone. Okay, we will start with a question. And if you are comfortable, then I will display the question on the screen as well. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making a tent. Also find the cost of canvas for the tent at the rate of 500 per meter square. Okay, we have to neglect the base of the tent will not be covered, so we have to neglect the base of the tent. Okay, I will write the important details of the given question. My question is, sorry for the interruption. So my question is, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. Question is, there is a cylinder on which surmounted, देखो हम याद कर सकते हैं जो नीचे शेप होगी वो सिलेंडर होगी, और हम याद कर सकते हैं सरमाउंटेड, सिलेंडर के सर पे माउंट है या कॉनिकल टॉप, जो सिलेंडर का जो ऊपर का जो सर वाला ऊपर का हिस्सा है दैट इज इन द शेप ऑफ कॉन. ठीक है, तो सिलेंड्रिकल टेंट है और उसके ऊपर का हिस्सा कैसा है, कॉनिकल. हाइट इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट किया था, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.1. सो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट वी हैव 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर. कंप्लीट डायमीटर इज गिवन 4 मीटर. सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर? सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज diameter is 4 मीटर. डायमीटर कितना है मेरे पास 4. सो एज वी ऑल नो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज 2 मीटर. सो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे पास 2 मीटर. ओके, नेक्स्ट थिंग आई हैव गिवन इज slant height is 2.8 meter. Slant height of the cone is 2.8 meter. So slant height of cone, that this is the slant height. Slant height of cone is 2.8 meter, which is denoted by L. Slant height को हम किससे डिनोट करते हैं, L से. Okay, so what we have to find is the area. Find the area मतलब total area. और क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, excluding the base. हम बेस को इंक्लूड नहीं करना. टेंट है, टेंट में नीचे बेस थोड़ी होता है. सो उसकी साइड से which is in the shape of cylinder and there is a conical top on the upside. So ऊपर की तरफ कौन है, नीचे बीच में सिलेंडर है. तो मुझे क्या निकालना है, कोई जो हमें फिगर गिवन है उसको इमेजिन करा था. ठीक है, इमेजिनेशन इज द बेस्ट पावर. कि किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इमेजिनेशन बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. क्या इसने बोला, डायमीटर बेस को एक्सक्लूड करके चलना, बेस को मुझे इंक्लूड नहीं करना. तो मैं क्या करूंगा, मेरा सिलेंड्रिकल टेंट है, ऊपर क्या है, कौन,
तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पूरा एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन. Got it or not? Okay. So total area is CSA of cylinder. Total area is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone. So what is the formula of CSA of cylinder? As we all know, the CSA of cylinder is 2 pi RH plus what is the formula of CSA of cone? CSA of cone is pi RL. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें L भी गिवन है, लिखिए जी ये फॉर्मूला हमारा सिलेंडर का, ये फॉर्मूला किसका है, कौन का, आप बेशक इसके नीचे लिख सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा. अब देखिए 2 फॉर द पाई वी हैव 22/7, रेडियस कितना है 2 मीटर और हाइट कितना है 2.1 मीटर प्लस पाई 22/7, रेडियस कितना है 2 मीटर और स्लैंट हाइट L इज 2.8 मीटर. ओके, सो बहुत सिंपल है सॉल्व करना. कल मैंने एक चीज बताई थी, बहुत सिंपल बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. मैंने बोला था अगर मेरे को पॉइंट गिवन है, मेरा इतना सा काम है, इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद वैल्यू देखनी कितनी है 1, कितनी वैल्यू पॉइंट के बाद 1, ये वो वाला 1 नहीं, सिर्फ पॉइंट के बाद वैल्यू देखनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है पॉइंट के बाद 1, तो मैं क्या लिख दूंगा नीचे 10 और ये पॉइंट हट जाएगा, दिस इज 21/10. बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं. नेक्स्ट वन इज 22/7 2 इंटू सेम वही 2.8, पहले कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर पहले लिखना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, तो मैं क्या लिख दूंगा 10, दिस बिकम 2.8/10. सो 7 से हम इसको कट करेंगे, 7 1 7 7 3 21 3 पे. ओके, 2 1 2 2 5 10, सो इट विल बिकम, सो यहां पे भी देखिए 7 4 28 2 5 10. ओके, सो इट विल बिकम 2 into 22 into 3/5. हम मल्टीप्लाई में पूरे के अपॉन कर सकते हैं, बट प्लस और माइनस में वी हैव टू टेक द एलसीएम. सॉरी, बट इन द प्लस एंड माइनस वी हैव टू टेक द एलसीएम. ओके, प्लस हियर 22 into ये 7 से 2 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 4/5 पूरे के नीचे लिख दो. चाहिए बेटा, जो ये मैंने तरीका यूज किया, ये मैंने मल्टीपल पेन्स क्यों यूज किया, मल्टीपल स्केच क्यों यूज किया, ताकि बोर्ड्स में बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ब्लू पेन यूज किया, ब्लू से ये काट दिया, ब्लू से बहुत ज्यादा खिचड़ी पका देते हैं, तो टू अवॉइड दैट मिस्टेक, और वहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो भूल जाएंगे कि मैंने इसको कट किया था नहीं किया था, ये इस पे कितने. सो बेस्ट थिंग इज यूज मल्टीपल पेन्स देयर. ठीक है, वहां पे जैसे मैंने रेड से लिखा, ब्लैक से मैंने कट किया, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है. सेम ब्लू से लिखोगे, रेड से कट करो, वो सॉरी ब्लैक से कट करो, और क्लियरली विजन आएगा. और इसको मैं सॉल्व करके, मैंने जैसे कि कल बताया था, मैं सॉल्व करके रखा था पहले, ताकि टाइम ना लगे. इसको सॉल्व करके मेरा आएगा 26.4 और उसको सॉल्व करके मेरा आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बिकम, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नहीं. 2 into 22 into 3/5, एक साइड सॉल्व करते हैं. ओके, कीजिए. 3 2 6 6 into 22/5, सो 6 2 12 6 2 12, 1 कैरी बचा, करके दिखाऊं. चलो 22 into 6 6 2 12 6 2 12 and 1 13 132/5. करो जी इसको 5 से डिवाइड. 132 डिविजिबल बाय 5, 5 1 5 सॉरी 5 2 10 3 2 5 6 32.0 आ जाएगा नीचे. 5 4 20. ऐसा नहीं है मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, बट फॉर द वीडियो विल नॉट सो टाइम कंज्यूमिंग, तो उसके लिए, उस टाइम को बचाने के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन करके रखा था. ठीक है, सो उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को, इस साइड को सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 17.6. सो जब हम इनको प्लस करेंगे, चलो प्लस करने का मैं बताता हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. 26.4, अब सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के बाद क्या है 6 1 and 7, 6 + 4 कितना आएगा 10, पॉइंट के बाद यहाँ एक वैल्यू है तो यहाँ भी एक ही वैल्यू आएगी. 6 + 1 7 7 and 7 14 3 और 1 4, इट विल बिकम
44 मीटर स्क्वायर। जो मेरा एरिया होगा टोटल वो कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 44 मीटर स्क्वायर। मेरा यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब मुझे निकालना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपए ले रहा है, 500। 1 मीटर स्क्वायर का टेंट जो बनाने के लिए वो कितना रुपए ले रहा है, 500। कल भी बताता हूं, बहुत कॉस्ट निकालने का बहुत सिंपल तरीका क्या होगा, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, द रेट इज गिवन टू मी इज 500 मल्टीप्लाई एरिया इज 44। सो जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आग बंद करके पहले 2 जीरो लिख दीजिए। अब 44 इंटू 5 करो जल्दी से फटाक से। 5 4 22, 5 4 20 और 2 22, it will become 220 rupees because this is my cost. So rupees will become 220, sorry, अगर हम कॉमा लगाएंगे so 22,000 rupees। एक बार क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड लाता हूं, क्वेश्चन को ढंग से देखिए। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन। सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन। बहुत सिंपल। हाइट, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, 2.1 लिख दिया मैंने। डायमीटर कितना है, 4। जो सिलेंडर का डायमीटर होगा, जब तक मैंने बताया था, जब तक अगर वो अलग अलग नहीं बोलेगा, जब तक हमें अलग नहीं कंसीडर करके चलना। सरमाउंटेड फिगर्स है, जो एक का बोल दिया, जैसे अगर वो कोन का बोलता रेडियस डायमीटर तो वही सिलेंडर का होता। ठीक है। स्लांट हाइट इज 2.8। स्लांट हाइट मैंने इधर बनाया 2.8। मेरे को टोटल एरिया निकालना है, तो क्या होगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ कोन। सिंपल, मैंने वैल्यूज पुट करी और मेरे को रेट दे रखा है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। मेरे को रेट दे रखा है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट, कल भी मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट कैसे निकलेगा, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। मैंने रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया। सो माय कॉस्ट इज 22,000 रुपीज। ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन, मैं सिर्फ फॉर्मूला तक बताऊंगा, अगर सेम क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन अगर वो मुझसे पूछता है मैं हर क्वेश्चन की दोनों एक्सरसाइज को इंक्लूड करके चलो, दोनों तरफ को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर सेम क्वेश्चन में वो पूछता है फाइंड द सरफेस एरिया, अगर सेम क्वेश्चन में वो पूछता है फाइंड द सरफेस एरिया, सॉरी फाइंड वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट, भाई उस टेंट के अंदर कितनी एयर होगी, तो जितना इस पूरे कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम बनेगी, दोनों फिगर्स को कंबाइन करके जितनी वॉल्यूम होगी उतनी एयर उस टेंट में होगी। चलो सेम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल मैं रखूंगा फॉर्मूला जो कि मेरे को याद है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिंपल, मेरे पास पाई की वैल्यू है, चलिए जी है 22/7। रेडियस है, बिल्कुल है, रेडियस किधर है मेरा, रेडियस यहाँ आया था मेरा, रेडियस 2 मीटर। सो 2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर तो मैंने रेडियस 2 बार लिख लिया। हाइट कितना है मेरे पास सिलेंडर का, 2.1 प्लस 1/3, यहां तक ये बीच में प्लस आ गया 1/3। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया। अब हाइट ऑफ कोन, क्योंकि कोन की तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्लांट हाइट है, और रेडियस भी हम बोल सकते हैं, रेडियस भी 2 है। सो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट। सो मैंने बताया था एक स्लांट हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बट आज मुझे L नहीं चाहिए, मेरे पास L ऑलरेडी गिवन है, मुझे क्या चाहिए आज, हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हाइट का स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर का अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर स्लांट हाइट पूछे तो ही क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ स्लांट हाइट के केस में वो प्लस आएगा। अगर आपसे रेडियस पूछे तो क्या आ जाएगा, रेडियस पूछे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। अगर रेडियस पूछता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए, यहाँ पर तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हाइट निकालनी है कोन की तो भी, रेडियस निकालनी है तो भी, और स्लांट हाइट निकालनी है तो भी। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करके हाइट में और आराम से यहाँ निकाल लूंगा। हाइट मेरा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट L कितना है 2.8 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी है 2 का स्क्वायर। चलो मैं हाइट निकाल के दिखा देता हूँ आपको, फिर वैल्यूज आप बहुत इजीली पुट कर दो। 2.8 का स्क्वायर, सबसे पहले 2.8 का स्क्वायर करना है मेरे को। 2.8 पॉइंट नहीं लगाओ, लिखो 28 मल्टीप्लाई 28। मेरे पास एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, 8 is 6, चलो मैं सिंपल तरीके से करता हूँ। 8 is 64, 6, 8 is 16, 16 और 6 12।
सॉरी 16 और 6 22, 8 2 ज़ा 2 16, 2 ज़ा 4 1 5 4, 6 2 ज़ा सॉरी 6 and 2 8, 5 और 2 10, तो कितना आएगा 10.84। बट जो मेरा एक्चुअल जो सॉल्यूशन था वो किसका करना था मुझे, 2.8 और 2.8 का। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1, टोटल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होगी 1 + 1 2, तो दो वैल्यूज के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा दें। देखो यहाँ मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद मेरी कितनी वैल्यू थी 1, इधर पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो इधर देखो पॉइंट के बाद दो वैल्यू है सेम, हमें राइट साइड से दो वैल्यू छोड़ के और क्या लगा देना है पॉइंट, तो इट विल बिकम माय h विल बिकम 10.84 प्लस सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ा 4, सो ये क्या हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूं फिर से आपको सॉल्यूशन 10.84। अब देखो बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो खाली 4 है, अरे 4 के बाद पॉइंट लगाओ 0 0 लिख दो, 4 माइनस करना है, 4 - 0 4, 8 - 0 8, 10 - 4 6, तो ये कितना हो जाएगा 6.84। अब सिंपल बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक, सर यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करेंगे, सिंपल एक तरीका बताता हूं बेटा, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, यस वी ऑल नो, हमने 8th में 9th में हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, तो हम उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकेंगे। बट अब यहाँ पे हमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने का टाइम नहीं है और कंपटीशन में आगे चल के लॉन्ग डिवीजन लगाने का टाइम नहीं होगा, तो अब क्या करोगे, इसको अप्रोक्स वैल्यू निकालो, ठीक है, देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर के पास आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा अप्रोक्स 9, तो देखो ये ज्यादा बिल्कुल 4 और 9 के बिल्कुल मिड में 6.8, देखो 4 5 6 और 6 के बाद 7 6.8 अप्रोक्स 7 के अप्रोक्स 7 8 9, तो दोनों के लगभग 2.5 के अराउंड है, तो इनकी बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालो, कोई भी अप्रोक्स वैल्यू रख सकते हो, आप रख सकते हो 2.5 और 2.6, तो इसे आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो 2.6 का स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 2.6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो h मेरा कितना आ जाएगा 2.6 अप्रोक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने किसका यूज किया है अप्रोक्सीमेशन, सो h की जगह मैं क्या रख दूंगा 2.6, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और जिसमें कि आपको सेम कॉन प्लस सिलेंडर मिलेगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट एज योर होमवर्क। बट एक चीज और, इस क्वेश्चन में आप देखना वो सॉलिड है, सिलेंडर के अंदर से कौन निकाला गया है, सॉलिड है, सेम हाइट का कौन निकाला गया है, तो देखिए इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, भाई कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड है तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, ये चीज मेरी सॉलिड है, ये पूरा ग्रीन कलर का था मेरा सिलेंडर ये पूरा ग्रीन कलर का था, आप ये देखना वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सिलेंडर मेरा पूरा ग्रीन कलर का था, उसमें से मैंने क्या निकाल लिया, एक कोन बाहर निकाल लिया, ठीक है, सेम हाइट का मैंने क्या निकाल लिया, कोन बाहर निकाल लिया, तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये फिगर मेरे पास सामने आएगी, ये फिगर मुझे सामने दिखेगी, ये। अब इसमें क्या क्या है देखना गौर से, अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ये CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये मेरा कोन का कर्व्ड पोर्शन है प्लस CSA ऑफ कोन। बट एक छोटी सी चीज और, क्योंकि मेरा फिगर सॉलिड है तो ये भी तो बच गया बेस एरिया, और बेस एरिया मैंने क्या बताया था पाई आर स्क्वायर, बेस सर्कुलर है सिलेंडर का, सो बेस एरिया विल बिकम पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसे सॉल्व करना। थैंक यू, जय श्री श्याम।